And similarly, the height of this basement is also 12 feet is there. Okay, this is the side view of the building. आप लोग इसको जरा ड्रा कर लीजिए. सिंपल स्केच कर लीजिए उस खाली. So this dimension will be required to find out the length of the pipe. Okay, हो गया ये? Yes, yes sir. Okay. सर ये 20 फीट क्या है पंप से, चिलर से? This is a 20 feet. This pump, this chiller is away from the face of building at a 20 feet distance. Okay. Okay. It is just an assumption. Okay. And then I will show you the each floor's layout. This is your ground floor. The ground floor, as I have shown you, side length of this building is the 120 feet, and the width of this floor is the 40 feet. Okay. Okay. And you can see the first portion is a office. Okay. And bottom side you are seeing here, this is the reception. Okay. Okay. The office size is the 15 feet by 20 feet as shown in the figure. And this office having a 5-ton TR AHU to which the chilled water we to supply. और इसमें जो AHU लगा हुआ है 5 TR का, इसकी पोजीशन मैंने शो किया है. Okay. पोजीशन है जहाँ पे लिखा हुआ वही कॉर्नर में ये 5 TR AHU लगा हुआ है यहाँ पर. Okay. Reception. Its length is 30 feet and width is the 20 feet. Okay. Okay, so as the 40 feet is the total width, तो half portion के आप 20 feet इसमें हो गया और 20 feet इधर हो गया. Okay, and this reception as having the arrangement that some guests may sit here, visitors may sit here, and some equipment is placed like computer or photo machines like this way, and permanent staff is also sitting on the reception. So the heat load calculation shows that it need the 10 TR AHU. Okay, that I have shown by the green line. So approximately in the corner it is placed the 10 TR AHU. ये लोकेशन जहाँ मैंने शो किया लगभग आप रखिएगा इसका, क्योंकि वो पाइप लेंथ वगैरह का फिर हमें जरूरत पड़ेगा. Okay, it is just the corner of the building, मतलब स्टार्टिंग इसी पोर्शन में आपका 10 TR AHU लगा हुआ है. Okay, and then the remaining portion is used as in a banquet hall. Okay, the banquet hall requires on the base of heat load calculation 15 TR, and this AHU is placed here. Okay, and this AHU, all this AHU then arranged with the ducting system, so the air may be supplied the required place. So as we are concerned only the chilled water here, so we are not focusing on the ducting arrangement. So just the 15 TR AHU is in this corner. Okay, the banquet hall. Okay. So this is the ground floor arrangement. Okay. All has drawn this one? Yes, sir. Okay. Then let's move to the first floor. This is your first floor. This first floor having the same 120 feet by 40 feet. The 40 feet that is shown here, the 40 feet is the width,
and 120 feet is the length of floor. On this floor, we having some extra arrangement. That means the 6 rooms are on one side and 6 rooms are on other side that you are seeing. And the size of each room is on the width side, you are seeing that is a 10 feet by 12 feet. and 12 feet is the length of that room. Okay. Okay, so total 12 rooms are there, 6 room one side, 6 room one side. So as a 10 feet is the width of the room, so 20 feet is going outside the rooms. And as the this side of the floor is the 40 feet, so center portion of the gallery that having the 20 feet is there. And every room have a fan coil units. Okay. The fan coil units, it having a the chilled water is supplied to the pipeline in the fan coil units, and then it has a fan. So the room air is circulated over this pipelines through which the chilled water around 5 to 6 degrees centigrade is passing. So directly the cooling is provided in the rooms. That is the known as the fan coil units. I hope everyone understand. Yes, sir. So capacity of the each fan coil unit is the 1 TR. Okay. And then the last portion is used as a restaurant. The size of restaurant is remaining length, that is the 48 feet, and the width is the 40 feet. This portion is used as for restaurant. Okay. In this portion of the restaurant, as you are seeing here, the partition is with the glass partition is there. And this restaurant required 10 TR AHU, which is placed in the corner here. This is the first floor. I think this drawing is clear. Have you drawn? Yes, sir. Okay, good. Then come to the second floor. When you are coming on the second floor, this floor having only the rooms. Okay. That means 12 rooms is one side and 12 rooms are other side. The size of the floor is same, 120 feet by the 40 feet is there. Okay. And the room size here is the 10 by 10 feet. So 12 room, so 12 multiplied by 10, so 120. And the width of the room is the 10 feet. So 10 feet this side, 10 feet other side, 20 feet. And the gallery remain of the 20 feet gallery is there. Okay. And this room is also requires 1 TR fan coil units. As seen generally, when you enters inside the rooms, so at just roof level, the fan coil units are provided or ducting systems are provided. So similarly, at the entry of the rooms from the gallery side, we having the 1 TR fan coil units in every rooms is provided. This is the second floor. You draw the diagram of the second floor. Yes, sir. Done. Sir, कर लो. Done? Draw. Yes, yes. Done, sir. Okay, good. And then come to the third floor. The third floor having size is say 120 feet and 40 feet is there.
This third floor having the 8 room one side, 8 room other sides. The width of the every room is the 10 feet and the length of the room is the 12 feet. Okay. And the remaining portion or 20 feet is the gallery. And the remaining portion is used as for bar. You see the bar is there at the top floor, that means third floor. And the size of the third floor bar is the 20 feet by 40 feet is the size. Okay. Again here by dotted line you are seeing glass partition is provided. This bar also having AHU of the 8 TR that is provided in the corner. Okay. So this is your third floor. So we having the ground floor, first floor, second floor and third floor. Okay. This type of the view sketch of the building that you requires to lay out the pipelines. 10-degree Fahrenheit temperature difference between the entry and living of the chillers. That means the water is coming at the 54-degree Fahrenheit temperature and living at a temperature of 44-degree Fahrenheit. This is the standard values are taking. And the temperature difference is here 10-degree Fahrenheit is the delta T values. Okay. And GPM calculation formula which I have given to you, that was the per TR basis we are calculating. So 1 TR is equal to 200 BTU per minutes, and CP value, that is the CP multiplied by delta T multiplied by the 8.33. It will give you the GPM per TR. ये मैंने फार्मूला बताया था, ये आपका TR वैल्यू इन GP BTU पर मिनट्स. ओके. अब जितना आपका डेल्टा T वैल्यूज है तो वो आप प्लेस कर सकते हैं और CP वैल्यू होता है 1. CP वैल्यू इज इक्वल टू 1. So from this equation GPM 200 and CP value is the 1. This is a specificity. And for the standard value, the 10-degree Fahrenheit temperature difference, if you are taking and divide by 8.33, so it will give you the 2.4 GPM per TR. By changing the delta T value, increasing the water flow rate requirement will be less, or if the delta T value is less, then the more water flow will be required. तो डेल्टा टी आपके चिलर में जितना ज्यादा आपको मिलता है, दैट इज द बेस्ट, एंड दैट विल बी इनहैंस्ड बाय प्रोवाइडिंग द इंटरनल ग्रूव्स इन द ट्यूब्स. जो ग्रूव्स ट्यूब्स के अंदर हम बनाएंगे, हेलिकल ट्यूब्स ग्रूव्स जो बनाएंगे, दैट क्रिएट्स द टर्बुलेंस. दैट मीन्स द मोर प्रॉपर मिक्सिंग विल बी देयर ऑफ द वाटर पार्टिकल, सो दैट इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर. ओके. और आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट वैल्यू डेल्टा टी वैल्यू विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हायर वैल्यू. तो जीपीएम रिड्यूस होने से हमारा मल्टीपल बेनिफिट वी गेट. नंबर 1 बेनिफिट, लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, द साइज ऑफ द पाइपलाइन इज रिड्यूस and the size of the pump is reduced, so correspondingly running cost will also reduce. तो अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो आपको वाटर ट्रीटमेंट भी प्लांट में लगाना पड़ता है, तो वाटर सर्कुलेशन कम है तो उसकी कैपेसिटी भी आपको रिक्वायर्ड कम होगा. तो इससे मल्टीपल बेनिफिट इज देयर. So I'm taking here the standard GPM, that is the 2.4 GPM for this system. Okay. So standard water flow rate for chilled water system 2.4 GPM per TR. So total water required flow rate in this case, so 2.4 multiplied by the total TR, that is the 100. So we get the 240 GPM that should be supplied by our chillers. That means the pump should supply the 240 GPM. This is the flow. And the total water we having the, as I've shown you. Yeah, no. Here we having the chillers. Okay. In the chillers, अब आपको 240 GPM जो है अब आपको सप्लाई कर.
कि 240 GPM यू हैव टू सप्लाई। अब आप फ्रिक्शन चार्ट निकाल लीजिए, that I have given you this friction charts. Yes, sir. After calculating the total TR, you can find out how much GPM you are requiring. Okay, and then we go to the friction charts just to calculate the pipe side. And keep remember, in case of the ducting, any size, whatever you are selecting, you can manufacture. लेकिन पाइप में ऐसा नहीं होता। पाइप साइजेस जो है वो मार्केट में स्टैंडर्ड अवेलेबल है। अगर आपने 1.3 इंचेस डाया कैलकुलेट किया तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो दैट मीन्स यू हैव टू ऑप्ट द साइजेस ऑफ द पाइप विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। नियरेस्ट अवेलेबल, या नियरेस्ट, जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है वो उसमें से उसके नियरेस्ट वाला आपको पाइप सेलेक्ट करना। नंबर वन थिंग। Second thing is, when you are selecting the pipe, keep in your mind when you are taking the smaller diameter of the pipe, velocity will be higher, so correspondingly friction will be more and your running cost will be higher. Okay. On the other hand, when you are selecting the slightly bigger size of the pipe, its initial cost will be more, but at the same time velocity will be less, so running cost will be less. result of also less. Yeah, so that means bigger size और smaller size ये डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली आपका ओवरऑल जो है रनिंग कॉस्ट थोड़ा हायर या लोअर साइड हो सकता है। इनिशियल कॉस्ट में आल्सो भी स्लाइटली हायर और लोअर साइड हो सकता है। ओके, here I will tell you before going to this friction chart one more important thing, that is the two standards are available. Water flow rate in pipeline causes the friction loss due to the roughness. For standard pipes, frictional losses is considered as follows. There are the two concepts we are using to calculate the friction loss. One is given by the ASHRAE standard. The ASHRAE standard recommend लॉस पर यूनिट लेंथ इज, इसमें जो है ना आपका जैसे हमने वहां पर किया था डक्टिंग में, वी फर्स्ट सेलेक्ट द एप्लीकेशन. आर यू डिजाइनिंग फॉर होटल्स, यू डिजाइनिंग फॉर लाइब्रेरी और स्टूडियो, रिकॉर्डिंग रूम, वॉट एवर इट इज देयर. ओके, एंड देन यू सेलेक्ट योर वेलोसिटी इन द वेरी फर्स्ट डायमीटर जस्ट आफ्टर द ब्लोअर. ऐसे किया था ना हमने. Yes, sir. बट इन केस ऑफ द पाइपलाइन, this type of the vibration at the starting is not generally transmitted to the different location. तो यहाँ पर के होटल्स के लिए वेलोसिटी कुछ अलग लेना है या आपके दूसरी एप्लीकेशन के लिए वेलोसिटी अलग लेना है, वो वहां से स्टार्ट नहीं करते हम. इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ओनली बिकॉज द वाटर का डेंसिटी 1000 टाइम्स इज मोर एंड द थिकनेस ऑफ द पाइप इज मच हायर देन द GI sheet. GI sheet में तो जरा सा higher velocity if you are selecting, so it may cause the vibration and that will transmit to the different places. But in the pipeline, this type of the problem is generally not exist because the density of the water is very high. At the same time, the thickness of the pipe is much higher than the GI. Okay, so then from which point we start? We start the two standard. One is given by the ASHRAE. They recommend that how much losses per unit length we should consider. They recommend the 400 pascals per meter of the length. ये लिख लीजिएगा. ASHRAE standard loss per unit length is recommended is the 400 pascals per meter of the length, or if you take the FPS system, that will be correspondingly this is the 4 feet per 100 feet of the length. Okay, and the generally the consultant जो यूज करते हैं just to reduce the initial cost of the system, वो लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा रिकमेंड करते हैं so that the they velocity थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं
तो कॉरस्पॉन्डिंगली डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन दैट विल रिड्यूस। अगर आप सेम फ्लो रेट के लिए वेलोसिटी ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं तो साइज रिक्वायर्ड विल बी लेस। When the pipe of the size required is slightly less, so correspondingly initial cost will reduce. Okay? तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को थोड़ा कम करके शो कर देते हैं आपको। रनिंग कॉस्ट तो कस्टमर ने पे करना है, वो तो बाद में पे करता रहे। ओके, वो शो कर देंगे, देखो हमने कम में आपका डिजाइन कर दिया। ओके, सो देयर कॉन्सेप्ट इज लॉस पर यूनिट लेंथ दे रिकमेंड इज द 500 पास्कल्स पर मीटर ऑफ द लेंथ। 400 की जगह दे 500 पास्कल्स लॉस को कंसीडर करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 फीट पर 100 फीट ऑफ द लेंथ। ये भी नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट। ओके, बट इन माय कैलकुलेशन आई एम फॉलोइंग द ASHRAE standards. That means I will take, as it is the whole system is in the FPS system, I will take the 4 feet pressure drop per 100 feet of the length. मैं इसको फॉलो अप कर, आप कोई भी फॉलो। ओके, have you noted this once? हो गया? ओके, तो 4 फीट पर 100 फीट ऑफ द लेंथ, ये फ्रिक्शन चार्ट्स और ये टेबल्स हम लोग इसमें फिटिंग्स के लिए यूज करेंगे। तो फ्रिक्शन चार्ट्स, एंड at the bottom you see 4 feet. The friction loss is given in feet of water head per 100 feet. Okay, तो 4 feet को आप लोकेट कीजिए। This is your 4 feet line is there. On this line you go vertically upwards, and then see on the right left side flow rate is given in the GPM. Okay, and our GPM is the 240 GPM. Here if you see, this is the 200, this is the 300. So you just locate by interpolation 240 feet, sorry, 240 GPM. So 240 GPM line point will be somewhere here. इस जो टच का लाइन आ रहा है इससे थोड़ा सा ऊपर होगा कहीं पर। Okay, then you put your scale on this point and then go horizontally and see where you are cutting the 4 feet length, 4 feet of the pressure. It is cutting somewhere here. It is cutting here. Okay, and at this point, then you see to which line you are closer. Because this point is between the, this is giving the 4 feet, sorry, 4 inches diameter. These are the diameters. It is written here pipe size. This is the pipe size diameters. And these lines are the velocity line that is given in the feet per second. Okay. So your point is lying between 3.5 to 4 inch. So we will consider 4 Yeah. inch. We are closer to the 4 inches, I think. Yeah. Okay. So that means from this diagram, अब आप ना different color से ले लीजिएगा। There is a supply line and there is a return line. Okay. So first I am drawing the supply line. That means your supply line going this way. Excuse me, sir. हाँ जी। सर वो चार्ट को दोबारा तो यहाँ पर लिखिए आप 3.5। सर 3.5 एक बार रिपीट। देखिए 168 GPM तो समझ में आ गया आपको? यस सर। That means out of the 240 GPM, 72 is going toward the ground floor. So 240 minus 72, that is equal to the 168 GPM.
and for the diameters between the ceiling, ground floors का ceiling और first floor का ceiling, इन दोनों के बीच में 168 GPM पास हो रहा है. So corresponding to the 168 GPM, then you go on this chart where the 168 is between the 150 and 200. ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये इनके बीच में लोकेट कीजिए 168. आपका पॉइंट ये आया, and then you go horizontally. Okay, अब यहां पर टच करते हैं तो this point is lying between the 3.5 and 3 inches. You are closer to the 3.5. तो आप 3.5 लेंगे. Okay. Okay. So the diameter is here. I have written that is a 3.5 inches. आप थोड़ा सा अपने तरीके से लिख लीजिए, मैंने बता दिया 3.5 इंच. और इसका लेंथ और लिखिए, इसका लेंथ कितना होगा इस पाइप का? 12 feet. Yes, very good. It's a 12 feet is there. तो आपका ये 12 फीट का लेंथ लिख लीजिए. Okay, and then to this floor, how much water will go? The load on the first floor is how much? 22 TR. 52.8 G. So the first floor load is that 22 TR. So 22 multiplied by 2.4 is equal to how much is say 50? 52.8. 52.8 GPM. So that means this side the 52.8 GPM will go. So in this pipeline, the remaining value will be the 168 minus 52.8 GPM. कितना बचा? 115.2. 115.2. क्लियरिटी हो गया? 1115.2 GPM multiplied by the diameters. 115 को लोकेट कीजिए फ्रिक्शन चार्ट के ऊपर. 115, इससे 100 एंड इससे 150. Very close to here. Okay, and then go horizontally. Diameters कहाँ आता है आपका? 3. 3. Yes, it is close to 3 inches. Okay, so we take the 3 inches dia. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 inches. 3 inches dia. Length is again 12 feet. Okay, and then again toward the second floor. What was the load on the second floor? 24 TR. 24 TR. तो 24 TR पर कितना आ जाएगा आपका? 2.4 into 24. 57.6 GPM. 57.6. So 57.6 GPM is going to this side. So remaining is 57.6. 57.6 ही बचता है इसके, क्योंकि 115.2 में से 57.6 when you subtract, so you get the 57.6 GPM. And for the 57.6 GPM, what is the size? 1 inch minimum. 40, 50, 60.
close to 2 inch. 2 inches. Close to 2 inches. Close to 2. 2 inches. ओके, तो आपका पाइप साइज जो है 2 इंचेस हो गया. क्लियर हो गया सबको? तो 57.6 it will carry the 2 inches size and 12 feet length. Okay, this is the floor wise, and then from the floor you will come back, that means for the return side. अब इसमें से ये जो फ्लोर पे आपकी सप्लाई दिया, यहीं से वापस भी आएगा ना वाटर? Yes sir. ये बिल्कुल पैरेलल में चलती हैं, बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर्स. अब देखिए, द 57 which you are supplying is the, हाँ जी, नहीं, देखिए देखिए मेरी एक बात सुनिए, 2 से थोड़ा सा बड़ा साइज आ रहा है, लेकिन 2.5 तो बहुत दूर है उससे. मैंने ये जरूर है कि आपको when you are taking the bigger or smaller size, that will definitely affect your running cost. कहीं पॉइंट पर हमने छोटा साइज लिया है, कहीं पर हमने बड़ा साइज लिया है. ओके, अब एग्जैक्टली साइज मार्केट से नहीं आएगा. अब देखिए, दो चीजें हैं, आप इसमें 2.5 का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. लेकिन हमारा जो एक थंब रूल चलता है ना, हम यही चलते हैं, कहीं पर हमारा बढ़ेगा कॉस्ट, कहीं पे कम होगा, क्योंकि मार्केट में एग्जैक्टली योर रिक्वायरमेंट पाइप साइज विल नॉट बी अवेलेबल, यू हैव टू ऑप्ट. तो जनरल रूल इज दैट आप किसके क्लोजर में हैं, आप वो लेते चले जाइए. इफ यू आर प्योरली, अगर आपका इनिशियल कॉस्ट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो आप 2.5 ले लीजिए. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या होता है कि वी हैव टू ऑफ द वाटर विच इज कमिंग बैक फ्रॉम द टॉप फ्लोर, दैट मीन द थर्ड फ्लोर, दैट इज द 57.6. यहाँ पर कितना होगा वाटर आपका? 57.6 होगा. ये समझ में आता है आपको? When you are taking the 57.6, तो साइज क्या चूज किया आपने? 2 इंचेस. अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही साइज आएगा, 2 इंचेस का साइज है. ओके, एंड द लेंथ ऑफ दिस पाइप इज आल्सो 12 feet. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, जो 57.6 you have to you are already supplying, that will come back in the return line. Okay, so here water flow rate will be 57.6, ऊपर से आ रहा था, और 57.6 this coming back, so it will again will be the 115.2. okay, so इसका साइज कितना होगा? कितना लिया था आपने? 3 inches, so same 3 inches and not required to see again, and the length is 12 feet, and from this floor water is coming back, and that will join the 115, और ये 52.8, so ये again it will be the 168, so it will be the 168 point, and the 168, and the size we have taking the 3.5 or 12 feet का length, and from here 72 will return line, 72 and 168, then it will be equal to the 240, और इसका भी लेंथ हमारा उतना ही होगा. कहीं हो सकता है कि अगर लेआउट में थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज हम यहाँ पर सेम लेंथ ले रहे हैं, और दिस विल हैव द 4 इंचेस, और आपका 44 फीट का इसका लेंथ. हाँ जी, ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? Yes sir.
रिटर्न दोनों समझ में आ गया? सर 3.5 का साइज सिलेक्ट तो किया है, तो क्या वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर? देखिए, व्हाट द साइज आई हैव सिलेक्टेड, that is general size, it is available in the market, but you have to see also from the market, you have to check it out. इसमें 2 इंचेस भी मिलेगा आपको और 3.5 को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर कौन सा मिलता है, उस केस में आपको हायर को ऑप्ट करना चाहिए। 3 इंच के बाद नॉर्मली सर 4 इंच मिलता है। हाँ, 3 इंचेस के बाद में तो 3.5 आपको नहीं मिलेगा। जीआई में तो शायद मिल जाता है, हाँ जी, ब्लैक में नहीं मिलता है। हाँ, जीआई में तो 3.5 मिल जाता है शायद, लेकिन ब्लैक पाइप में नहीं मिलता है। उसमें ब्लैक में नहीं मिलता। उसके ये बाद- जो आजकल आ रहे हैं ना पीवीसी वाले में है सर 3.5, मैंने लगवाया था अपने घर पे। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन पीवीसी नॉर्मली भी यू डोंट यूज। हाँ, पीवीसी वी नॉर्मली डोंट यूज फॉर वेरियस मेनी रीजंस। तो पीवीसी अभी तक चिल्ड वाटर के लिए पॉपुलर नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ट्राई किया है बट पीपल फेस प्रॉब्लम। तो वो जो है अभी ये खाली ब्लैक पाइप ही नॉर्मली यूज होता है। जीआई पाइप वहां यूज होता है जहां पे कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम हो कि पाइप लग नहीं सकता। तो व्हाट यू सेड इज कि 3 के बाद 4th का पाइप ही यूज होगा। तो आपको ये मार्केट से चेक जरूर करना पड़ेगा बिफोर यू आर गोइंग टू। हाँ, चेक जरूर कर लीजिए, लेकिन ब्लैक में मिलता नहीं है सर, 3.5 नहीं होता। हाँ, ब्लैक में जीआई में शायद आता है, और GI जीआई में शायद भी है, 4 GI इंच में के है। बाद 5 इंच नहीं आता है, फिर 6 इंच आता है। तो उस केस में अगर आप देखिएगा, हमने 3.5 लिया था। ओके, वी आर हेयर फॉर ए 3.5 पॉइंट को देखिए जरा। तो हमने जस्ट एज वी आर क्लोजर टू 3.5, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ओनली फॉर दिस वन, अदरवाइज वी आर आल्सो क्लोजर टू द 4। ओके, अब ऑप्शन में ये आया कि 3.5 तो अवेलेबल नहीं है मार्केट, तो उससे नीचे अगर ये पॉइंट आ रहा है और आप मैं बोलूं कि आप 3 पे जाइए, तो नो, तो 3 से तो बहुत दूर हो जाएंगे, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन इज दैट यू क्लोज टू द 4। आप जहां पे लाई करते हैं, दो जो लाइनें आ रही हैं आपकी डायमीटर्स की, जनरली वी आर फॉलोइंग दैट टू विच वी आर क्लोजर, बट दैट वी आल्सो सी दैट इफ इट इज अवेलेबल और नॉट। If it is not available, then you definitely go to the next pipe diameter, which is to which we are closer. Okay. हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? Okay. Yes sir, yes sir, clear. Good. So this is the pipe layout for the floor wise. Now come to the different floors. Up the 72 GPM we have supplied to the ground floor. How this 72 GPM is divided on the ground floor. अब अपना दूसरा पेज ले लीजिएगा, and this is your ground floor. Okay, and at the ground floor there is, as I told you, there is the office having the 5 TR in the corner, we are assuming, and there is a reception that having the 10 TR, and this is the banquet hall which having the 15 TR, and the 72 TR total that is required in this floor. Then draw the layout of the pipelines to supply water to the different AHUs here. Okay, this pipeline is coming. This pipeline is coming. अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम्पशन लेना पड़ेगा, या आर्किटेक्चरल ड्राइंग से ही पता चलेगा कि पाइपलाइन का एग्जैक्ट लेआउट क्या पॉसिबल है। ओके, अब ये आपका दिस ऑफिस 5 TR AHU is there. I'm taking that this
pipeline first coming. Okay, and then by providing the T, we are taking one connection this side and one connection we are providing to this tier, 5 tier. Okay, and initially I am taking this portion, that means ये जो wall से लेकर के और एकदम से तो आप कनेक्शन देंगे नहीं, थोड़ा सा you have to travel. That means in this portion, the size of the pipe, this is the 72 GPM, it is coming toward this side, and for the 72 GPM, what the diameters we have taken? कितना डायमीटर 72 के लिए हमने 2 इंच नहीं अभी लिया नहीं है ना, 72 के लिए तुमने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो दिस 72 को आप लोकेट कीजिए जरा. दिस इज द 4, द सेम वर्टिकल लाइन वी हैव टू फॉलो. 70, दिस इज द 40, 50, 60 एंड 80. 3 इंच 72 इज समवेयर है. ओके, 72 में जाइए हॉरिजॉन्टली. 2.5 इंच 2.5. If we are assuming that is a 2.5 inches dia is available. ये लोकेशंस है. सपोज 2.5 inches नॉट अवेलेबल, तब आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 3 inches और 2 inches? 2 इंचेस 2 inches. देखिए ना, क्लोजर क्या है, आप वो देखिए, आपका पॉइंट लाई करता है 2.5 और 2 के बीच में ना. आप देखिए कहीं पर तो अंडर साइज होगा ही, थोड़ा सा कहीं फ्रिक्शन बढ़ेगा. और अभी जो मैंने लोकेट किया और 2.5 अगर आप ले रहे हैं तो या तो बिगर साइज यूज कर रहे हैं. अब मैंने फिर आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये आपके इनिशियल कॉस्ट पे, अगर आप इनिशियल कॉस्ट को बिल्कुल बचाना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना, तो 2 इंचेस पर ही जाएंगे. 3 इंचेस लेने का मतलब तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ती है आपकी. ये तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी. 2 में रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी यहाँ. ये आपका प्योर आपका डिसीजन होगा कि आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं. यू वांट टू शो दैट आई हैव रिड्यूस द इनिशियल कॉस्ट और यू आर इंटरेस्टेड टू सेव द एनर्जी. अगर मैं देखिए एज ए कंसल्टेंट बात करता हूं तो डेफिनेटली मैं इसकी इनिशियल कॉस्ट को रिड्यूस करके दिखाऊंगा. और इफ आई एम वर्किंग एज ए एनर्जी ऑडिटर तो मैं बोलूंगा आप बिगर साइज यूज कर ली, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी कंडीशन सेंटर में ही लाई कर रही है. 3 इंचेस और 2 के सेंटर अप्रोक्सीमेटली. ये जो पॉइंट आ रहा है 2.5 लाइन पे बहुत क्लोज में है, तो आप 3 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं. सिंपल, द वन डिसीजन इज दैट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इनिशियल कॉस्ट, यू वांट टू सेव द रनिंग कॉस्ट. तो आप देख लीजिए पाइपलाइन की लाइफ तो 10 साल तो चली जाती है. आप भी देख लीजिए, आपके घर में जो पहले जीआई वाले डले हुए हैं, कितने साल, 20-20 साल चल जाते हैं. उनको जब तक छेड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक वो चल रहे हैं. उनको छेड़ दिया तो बस वहीं से वो लीक कर जाएंगे. फिर भी आप 10 साल तो मान के चलिए. ओके, तो आप रनिंग कॉस्ट, अगर आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता तो आप रनिंग को सेव कर रहे हैं, तो आप उसको ये एक फंडा ले लीजिए, मैंने कि रनिंग कॉस्ट को मिनिमम रखना है और उसके हिसाब से देन आई हैव टू चेक. तो here 2.5, तो ये आपका 2.5 इंचेस का डाया हो गया. जस्ट बाय assumptions I am taking, I am providing connection after the just 5 feet. तो ये मेरा 5 फीट का लेंथ आ जाएगा इसका साइज.
Clear? And then if for the 5 TR office AHU, जरा इसका देखिए, this is placed 20 feet के डिस्टेंस पर है, तो थोड़ा सा कनेक्शन में 20 से कम लगेगा पाइप, तो पता नहीं कटिंग फिटिंग में कितना जाता है. आई एम टेकिंग दैट, मेरे को 20 फीट का ही पाइप लेंथ लगता है, वो आपका एक्चुअल में पता चलेगा. बट दिस 5 TR रिक्वायर्ड हाउ मच वाटर फ्लो रेट? 5 TR multiplied by the 2.4. 12 GPM. नहीं, फ्लो रेट कितना हुआ? 12 GPM. 12 GPM. So that means it will be the 12 PM multiplied by what is the diameters of this 12 GPM? Minimum 1 inch. This is the 10 and this is the 15. So we are here. कितना आता है? 1/4 and this is the 1. But I think we are closer to the 1 inches. तो 1 inches ही consider. Okay. So we take the pipe of 1 inches. Every person try to locate this point. This will give you the practice and the how we are taking. That concept should be very much clear. This is the diameters and the length of pipe. I am taking the 20 feet का ही मेरे को required है या 15 feet का है, जो भी है आपको hardly matters. Okay. And then this pipe, as this is placed just the corners, so the length I am taking, there's a 5 feet का मुझे इसमें कनेक्शन में लग जाता है, बिल्कुल यही कॉर्नर पर ही है, लेकिन 5 feet का मैं इसका लेंथ लेके चलूंगा. ये 10 TR is there, so 10 TR multiplied by the 2.4, so it will need the 24 GPM. So that means here 24 GPM multiplied by, sorry, diameter of this pipeline, देखिए कितना होगा, इससे 20 से 30, so 24 is somewhere here. चलिए इसको horizontally, you are here, तो आपको तो मिलता है आपका 1.5. कितना डायमीटर लेंगे यहाँ पर? 1.5. So that means ऐसे 1.5 inches का diameter हो गया. And for this, as it is near to this one, so I am taking just the 5 feet of the length of this pipe for the connection. And now this pipeline is further going, and I'm taking that it is this way. The connections are given somewhere here. Okay. As this is a 15 TR, so 15 TR 2.4 equal to how much? 36. 36. Okay. So that means in this pipeline, we are taking the 36 GPM, and the for 36 GPM, this is 30, this is the 40, 36 is somewhere here. कितना diameters आता है? 3 inch. Close by 2 inch. 2 inches. आप 2 inches ले लीजिए इसको. This is the 2 inches. Length कितना required होगा? 5 feet तो मैंने यहां तक दिया. And this is the 15 feet. Up to this 10 feet extra. निकल गया, 10 feet here.
और ये पूरा मैं 20 ले लेता हूँ लास्ट तक कनेक्शन में जितना भी लगे, तो आई विल राइट हियर +20, इससे 30 feet will be slab. Clear? And then I have to come back in the written line. Written line will follow okay, and this water will fall in the written line here, and this water will also fall in the written line here, and that will go back. अब जो written line है, that will be same as it is. Okay, यहाँ तक सेम रहेगा. और ये जो आपको ऑफिस के लिए 5 टीयर को कनेक्शन दिया साइज इसका है, इसी का भी रिटर्न का भी दैट विल हैव द सेम साइज हियर, एंड द 10 टीयर को जो कनेक्शन दिया है द सेम साइज ऑफ दैट विल बी यू टेक हियर, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट दिस द सेम साइज ऑफ दिस विल बी देयर. ओके, अब मेरे उसमें जगह नहीं है तो आप लोग कहीं पे अपना मेंशन कर लीजिए. यस सर. ऑटोकैड में तो बहुत छोटा छोटा रिटर्न पे भी लिखा रहता है और उसके ऊपर, but the concept should be clear, कहाँ से रिटर्न आ रहा है, कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, that will be the same supply and return. इंचेस का. ओके, आप एक फ्लोर के लिए एक कनेक्शन तो देंगे ना, यहाँ पर जितना फर्स्ट फ्लोर के लिए रिक्वायर्ड होता है उसमें से मल्टी कनेक्शन नहीं देते, लॉसेस हमारे बहुत बढ़ जाते हैं. Toward the one floor we take a one branch and that supplied water to that particular branch, then further it is divided. आप उसमें 4 इंची से यहाँ के लिए देंगे, मतलब कि ये NTR के लिए देंगे, और ये तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, आपने क्लोज में था, आप ले सकते हैं. 5 TR को कैसे देंगे, 15 TR को कैसे देंगे, तो एक के लिए हम एक ब्रांच देंगे. फर्स्ट फ्लोर require the how much flow rate? 160 GP. Oh, sorry. 52. 52. Yeah. $52.8 GPM is coming. In this case, this pipe which is coming, and का पहले मैं आपको देखिए रूट बता देता हूं. देखिए उसमें से सीलिंग में से बहुत सारे पाइप जाते हैं. आपका इलेक्ट्रिक पाइप भी हो सकता है, आपका दिस वाटर पाइप भी होते हैं, ठीक, सारा उसमें this will be your root of the pipe, and between the gallery one pipe is provided this sides and one branch is given, and similarly here. $52.8 GPM, and for the 52.8 GPM, what is the size? 2 inch. 2 inch. जी, ये charts.
this sides, and the size of 2.4, say 2 is there, 2.4 is somewhere here, and then you come here, तो आपका you are here. कितना पाइप साइज आता है आपका? हाफ इंच. Half inch. So for this ones, half inches can be used. So it's a half inches pipe. अब इसका कनेक्शन देखिए, 20 फीट का तो गैलरी है सेंटर से, दैट मीन्स दिस साइज इज द 10 फीट, और इसको कनेक्शन के लिए मान लीजिए 3 फीट लग जाता है या 5 फीट लग जाता है, कटिंग फिटिंग में चला जाएगा, तो हम इसको लेंथ में दे रहा हूँ इसका 10 + 5 to 15. दे दिए. इस लेंथ की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो कटिंग में जितना भी आएगा वो आ जाए. ये 15 फीट का हमने यहाँ पे. Here, all the fan coil units connection, this side or this side, will have the same. Yes, sir. सर बोलिए सर ये 15 फीट कैसे लिया सर? ये 20 फीट तो सर. सर देखिए मैंने कॉन्सेप्ट किया, ये 20 फीट का विड्थ है ना गैलरी का, यस सर. तो आपके सेंटर में आप तो 10 फीट यस सर. यहाँ तक का पाइप चाहिए आपको, यस सर. और 5 फीट का मैंने कनेक्शंस के में लगा दिया. ओके ओके. अब वो 5 फीट का 3 फीट भी हो सकता है, लेकिन Yes. 10 फीट चाहिए ही आपको, बिकॉज यू आर सेंटर एंड गोइंग टूवर्ड दिस रूम, और 20 फीट गैलरी, तो 10 तो चाहिए, 10 में +3 4 जो भी चाहिए, मैंने 5. ओके. एंड नाउ इन दिस पाइपलाइन देखिए 2.4 goes to this side, 2.4 goes to this side, तो कितना बैलेंस आया फ्लो रेट आपका? 48 something. 8. 48. 48 will be the flow rate here. अब 48 की correspondingly you find out. This is the 40 and this is the 50. 48. What the size will you take? 2 inches only, sir. 2 inches. So ये 52.8 में भी 2 inches है, and this also require the 2 inches. Okay. सर सबसे पहले इसमें भी? हम ये एक हाँ जी? सोच सकते हैं कि लास्ट जो यूनिट है 10 DR का, हाँ, उसके लिए जो लास्ट टेपिंग का साइज क्या आता है, और तो उस लास्ट टेपिंग का साइज भी अगर करीब करीब ही आता है, तो ये पूरा लाइन उसी साइज का कर सकते हैं. देखिए अब हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, या लर्न. प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर उनके पास में 2 इंचेस का नहीं है ना, जो भी पाइप अवेलेबल है वो उसको भी डाल देते हैं, उनको कुछ नहीं पता. जो लेमैन होते हैं वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे एक्चुअली 20 फीट की लेंथ आती है पाइप. ओके. 15 फीट उनका यूज हो गया, और 5 फीट में अगर डायमीटर चेंज होता है तो वो नहीं करेगा, वो 20 फीट को ही लगा देगा. ऐसा भी. At this stage, you try to learn how accurately we can design, and then practically, if some modification is required, तो वो साइट पे वो लोग करते हैं. So the length of this 2 inches will be how much here between one room to the another room? That will be the सेंटर में दिया है, तो हमने ये 12 फीट था, 6 फीट तो इस साइड से आया, 6 फीट इस साइड से आया, तो इट विल बी द 12 फीट. ओके. एंड देन अगेन 48 में से देन यू सबट्रैक्ट द
2.4 minus 2.4. So remaining flow rate is how much? 48. हाँ जी, सर एक बार 48 रिपीट कर दो सर, ये समझ नहीं आया कैसे आया। 48 कैसे आया? देखिए इस पॉइंट पे आपने टोटल इस फ्लोर के लिए 52.8 लिया, ये तो मालूम है ना? यस सर, वो पता है। Okay. And then at this point, you are taking the two connection toward the first room and the 12 number room, each having the 1 TR fan coil units. So one require the 2.4 GPM. यस सर। So 2.4 GPM ये मैंने लिखा है ना, 2.4 GPM is going toward this sides, and similarly 2.4 is going to this side toward the room number 12. तो आपका Yes, sir. 52.8 में से माइनस कर दीजिए 2.4 और 2.4, ये क्या है आपका? 48. ठीक है, so that means in this pipeline, that means the pipeline between the room number 1 and 2, 48 GPM is going, and its diameter that we calculated, that is the 2 inches, and the length between the two room is how much? 12 feet. इतना 12 feet ही तो है, विड्थ है, उतना गैप भी होगा सेंटर टू सेंटर, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 6 feet, और यहां से लेके यहां तक भी तो 6 feet है, तो 12 feet का गैप है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. Now again, at this point, out of the 48, 2.4 is going toward the room number 2, and 2.4 is going toward the room number 11. So that means that 2.4 GPM, 2.4 GPM मैं लिख देता हूँ, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4. ठीक है, सर 48 के बाद की लाइन में के लिए ये आता है रहेगा। या And 40. in this portion, what will be the flow rate? 43.2. 43.2. 43.2. So you just write the 43.2. Diameter देखिए, then you go to the friction charge 43. What diameter will you suggest? The same 2 inch. Same 2 inches. Yeah. The 40, this is a 50, 43 is somewhere here. So आपका वही 2 inches dia. So it will have the 2 inches dia multiplied by same length, 12 feet. Yeah. इस पोर्शन में आ जाइए, 38.4. flow rate is 38.4, and for that one, what is the diameters? ये भी नियर टू 2 इंचेस है, तो अभी भी 2 इंचेस के ही नियर में है हम लोग। ठीक, तो आप 2 इंचेस का डायमीटर यहाँ पर भी यूज की। Then again 32, 33.6. 33.6. 0.66. So you write here 33.6. I'm writing here 33.6. And this time the diameter is going to change or not? No, sir, I guess same. सर
1.5 से थोड़ा ऊपर है और इसके बीच में, लेकिन फिर भी 2 इंचेस कंसिडर कर सकते हैं। Okay. All are agree for 2 inches dia? हाँ जी बोलिए। टर्न्स लेने पड़ रहे हैं मतलब? No, pipe size will not be affected, but the friction loss will be affected because the number of fitting, number of bands are there. So that will cause the different. तो अभी जब हम पाइपलाइन के आएंगे ना, उसमें फिटिंग लॉस कैलकुलेट करेंगे अभी हम, तो उस पे अफेक्ट आए. फ्लो रेट इज एंड diameters. If the more is the flow rate will affect the diameters. अगर फ्लो रेट कांस्टेंट जा रहा है उसके अंदर से, चाहे वो जिग जैग पाथ करके जाए, लेकिन फ्लो रेट तो उतना ही है ना, तो फ्रिक्शन चार्ट तो आपको उतना ही देगा ना वो. तो फिटिंग उसमें अंदर आ जाएगा, तो जितने हर्डल आएगा उतना ज्यादा लॉस बढ़ जाएगा. नहीं, डायमीटर पे फर्क नहीं पड़ेगा. उससे आपकी पंप की साइज के ऊपर फर्क पड़ेगा. या वो तो जितना फ्रिक्शन यू हैव टू टेकिंग केयर, तो डेफिनेटली द पंप विल हैव टू डेवलप दैट मच ऑफ द हेड. 2 inches we are using, and then what is the flow rate after 33.6 के बाद? 28.8. 28.8. 28.8. And this time the diameter is going to change or not? Yes, it is going to change. It is 1.5. 28. Is that 20? Yeah. Now the diameter will change. 1.5 inch. So here diameter is the 1.5 inches और length तो आपका 12 है. And after the 28.8, that using the 1.5 inches dia, now flow rate in this pipeline is the 24. Yes. Okay, because 10 TR is there, so 24 GPM. And corresponding to the 24 GPM, this is a 20, and you are here. So it is 1.5. It's the same size. Take 1.5 inches. The length of this pipe will be how much? देखिए, from this center of the 6 number room, 6 feet is this one. Then it's a 48 feet horizontally it is going, and then we are taking toward the this 10 TR AHU. वो 40 फीट ही आप 20 फीट उधर ले लीजिए, 20 ले लीजिए, लास्ट में जाके कहीं कनेक्शन है जहां भी होगा. तो 6 + 48 + 20 कितना हुआ? 72. 72 या 74? 6 ना. ये 6 है ना? 74. 74 74. ये 74 मैंने कैसे लिया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस वन? Yes sir. ये 6 फीट हमने यहाँ पर लिया है क्योंकि रूम का विड्थ 12 था, तो सेंटर से 6 फीट ये हो गया. एंड वी आर टेकिंग अप टू द एंड, दिस इज अ 48 फीट, दिस इज रिटन 48 फीट, और 10 TR के मैंने लास्ट तक ले लिया है,
और लास्ट जो है ना आपका 40 फीट का ये लेंथ विड्थ है, तो ये 20 फीट ले लिया। अगर कॉर्नर में रखा है तो हमने लास्ट तक लिया है जनरली। तो दिस 26 plus 48 plus 20, that will be 74. Every fan coil unit same size you can use. And now the return line, the same line parallel to that ones, जिसमें जितना फ्लो रेट आता है इसमें से देन दिस फैन कॉइल से और इसमें से डंप हो जाएगा वाटर, एंड देन हॉरिजॉन्टली इट विल गो आउट। इधर से वाटर इसमें रिटर्न होता रहेगा फ्रॉम द एवरी, एंड द साइज विल रिमेन सेम बिकॉज दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फ्लो रेट, एंड देन इट गो आउट। दिस इज द रिटर्न लाइन। यस सर। I think let's have a 10 minutes. यस सर। 1 TR कितना लिया था? 15 फीट। हाँ जी सर। तो क्योंकि 10 फीट तो आपका ये हो गया और 5 फीट अंदर कनेक्शन में और ले लिया तकरीबन, तो 15 फीट हमने ये ले। So that means every fan coil unit will have this data, 2.4 GPM, half inches length, and correspondingly 15 feet length is there. Okay. Then from the first room to the second room, the flow rate in this pipeline will be how much? सर 52.6। 6. हाँ जी, 52.8। 52.8. Okay. And for the 52.8, have we calculated already the size of dia? नहीं निकाला तो यहाँ से लिए। सर निकाला हुआ है ना। निकाला हुआ है कितना? वही 2 इंचेस होगा। 2 इंच। 2 इंचेस। यस सर 2 इंच। So here you take the 2 inches dia. Okay. And length of this pipe is center to center, so 10 feet will be there. यस सर। And then the flow rate in the next room between 2 and 3, 48। 48. सर अभी तो सेम है। सर ये भी पिछले इसमें किया ही है। हाँ 48 पर सही। था, वो भी 2 इंच का था। 2 inches. The same diameter we can select, 10 feet length. And after the 48, 43.2। 43.2 उसके लिए भी 2 इंच है। 2 इंच है। या वो भी हमने निकाला हुआ है। 43.2 डायमीटर कितना निकाला था? 2 इंच। 43 पर भी यस 2 इंचेस होते हैं। 2 inches by 10, and then 38.4। 38.4 निकाला है। या ये भी निकाला। कितना है? इस पे से चेंज नहीं किया था? नहीं सर नहीं। या इसमें भी 2 इंचेस ही है हमने लिया है। 2 इंचेस। या इसके बाद चेंज किया था। 10 इंचेस। नहीं यार 28.8 पे चेंज किया था। हाँ 33.6 भी उसमें चेंज भी नहीं किया था। 33.6 उसके लिए भी 2 इंचेस सर। 2 इंचेस। यस सर 2 इंच। Okay, 2 by 10. 28.8 पे फिर Flow change rate किया। is 28.8. For 28.8, and you check 28. It is somewhere here. Now it's a 1.5.
Yeah. So 1.5. Then it's a 24. 24. So for the 24, 1.5 inch. yeah, 1.5 again. Okay. 19.2. 19.2. इससे भी 1.5 ही होगा। वो भी 1.5 से ठीक है। नजदीक। 1 है, पास 1.5 ही है। कितना लें? देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। वॉट एवर यू वांट टू टेक, 1.5 इंक्रीज हाँ करें। 1 है, हाँ 1.5 ही से। Okay. यहाँ कम कर दो। 14.4। 14.4 ये 1 इंच हो जाए। 1 and 1 और 15, ये इसके आसपास है। 1/1/4। या 1.25। 1/1/4। Then the flow rate is the 9.6. Yeah. Yes, sir. Or the 9.6. 8. The 9.6. It is around 1 inch. Is the 2 inches by 12. And then 33.6. here 33.6. And we 2 inch. use the size, huh? 2 inch. Up. इस पर भी मुझे लगता है हमने 2 इंचेस लिया है। हाँ सर 2 इंच। Is that 2 inches? Now it's say 28.8. इसमें 1.5 लिया है। 1.5. And then we have the 24 GPM. And for the 24 GPM, 1.5. 1.5 again. Now remaining is the 24 minus 4.8. 8. 19.2. $19.2. Yes, sir. Yeah. For the 19.2, if you go to the friction chart, 1.5. 0.2, yeah. Say here 1.5. 1.5 inches, and the length of this pipe will be the size of the bar is the 24, and this is the 6 feet is this portion. 30, 50.
30 और ये 20 इधर हो गया 50 feet. 50 इसका 24 और 6 ये हो गया 30 और 40 था ये उसका हाफ कर दिया 20 तो 50 feet will be the length of this. I hope how the size of the pipe is calculated. It is clear to everyone? Yes, sir. Okay. And the length of the pipe will be decided only from the drawings or actual site conditions that may change. क्योंकि उसमें कितना फिटिंग में हमें लगा. And after calculating the size of the pipeline, the second step is how to calculate the friction loss. Here also as it is based on the equal friction method, because we are taking the 4 feet of the length or 4 feet of H2O pressure drop per 100 feet length, that we have maintained this loss per unit length constant value, and it is a equal friction method. In this case, how many loops will be formed or how many parallel circuit will be formed? Can anybody has an idea how we calculate the total parallel circuit? देखिए अगर आपको डक्टिंग वाली क्लास याद है ना, तो उसमें भी हमने आपका जो बताया था यही कॉन्सेप्ट बताया था. नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर यू आर टेकिंग द वाटर एज एन एयर एज एन आउटलेट. इस फ्लोर के अंदर हाउ मेनी आउटलेट्स आर देयर? थर्ड फ्लोर आउटलेट्स हैं 17. Yes, because the 16 rooms are there, so each room is providing the one loop and there is a one bar. So here the 17 outlets are there, so it will make the 17 loops. Okay, so similarly you calculate the number of loops on every surface, every floor, and then you will have the number of parallel loops or parallel circuits. And the similar to the ducting system, we have taken the longest loop. Okay, longest loop हमने लिया था last वाला row में, last point लिया. Similarly, in this case, the same thing we have to take. Last class में भी किसी ने एक question पूछा था कि if the parallel loop which is closer to the pan having the more friction loss in comparison of the longest loop, तो हमें selection किसके हिसाब से करना? It is not only the length criteria, it is the criteria that the loop which having the maximum frictional loss, that will be the deciding factor. Yes sir. आपने शायद ये क्वेश्चन पूछा. हाँ सर मैंने पूछा. तो इसमें भी हमें जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल लॉस का जो लूप है, दैट विल डिसाइड द पंप हेड रिक्वायरमेंट. यस सर. सिर्फ लेंथ से डिसाइड नहीं होता. ये तो लेंथ एक जनरल क्राइटेरिया, भी डिस्टेंस ज्यादा है तो वो फ्रिक्शन लॉस भी उसके अंदर ज्यादा होगा. लेकिन हो सकता है कि उस लास्ट पॉइंट से पहले कोई पॉइंट है एंड दैट कैरिंग द उसका टनेज बहुत ज्यादा है. तो व्हाट इट मीन्स, टनेज ज्यादा होने का मतलब है दैट मीन्स द हीट एक्सचेंजर यूज इन दैट वन इज द बिगर हीट एक्सचेंजर, एंड हीट एक्सचेंजर इटसेल्फ इज ए पाइपलाइन. इटसेल्फ ए पाइपलाइन. उसका अपना फ्रिक्शन लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि वो लास्ट वाले जो लूप है उससे ज्यादा अगर लॉसेज आ गया तो यू हैव टू सिलेक्ट टू दैट.
अब आप बोलेंगे कि सर इसमें पूरे सिस्टम में मान लीजिए आपका 70 लूप्स फॉर्म हो गया, तो विल हैव टू कैलकुलेट द 70 लूप? नो, दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब देखिए इस फ्लोर के अंदर 70 लूप्स आर देयर। आप अपने माइंड से मुझे बता सकते हैं कि विच लूप विल हैव द मैक्सिमम लॉस? लास्ट वन, बार वन। व्हाई? सर वहाँ Why? एक सर सबसे, बिकॉज एक तो लास्ट में है और उसका टनेज भी सबसे ज्यादा है। वेरी गुड। देखिए सिमिलरिटी से आप लोग कह सकते हैं द फर्स्ट रूम एंड द सिक्स्थ रूम, दिस विल हैव द सेम या लॉस। और सेकंड का क्योंकि लेंथ बढ़ गया है तो इसका और ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑल सिमिलर आर देयर। So that means if you consider the room wise, so you will get the either the 8 room number or the loop or the 9 number. They have the maximum loss on this floor. But that 8TR having the more length is there और उसका tonnage, उसका internal loss भी ज्यादा हो. So that means on this loop only the last one 8TR को आपको जरूरत होगा, यानी कि थर्ड फ्लोर पे आपको इसी से सिमिलरिटी से पता चल गया कि जो बार है that will have the maximum frictional loss। तो आपको हर लूप का निकालने का जरूरत नहीं है, आप इसके तौर पे सिर्फ एक ही निकाल। ओके, ये बार वाला आप एक तो इसको देखिए, मान लीजिए ये आता है कैपिटल ए। ओके, एंड देन यू गो टू द सेकंड फ्लोर। ऑन द सेकंड फ्लोर अगेन द सिमिलरिटी इज देयर। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी you can calculate which one will have the maximum loss। देखिए 1 और 2 को कंपेयर करें तो डेफिनेटली 2 will have more because का लेंथ ज्यादा हो गया। And the similarly here the 12 और 13 will have the maximum loss on this floor। यस सर। फ्लोर का ये ही मैक्सिमम होगा इस फ्लोर का खाली। ओके, तो लेट्स से दिस इज द बी इज देयर। तो आपको एक तो थर्ड फ्लोर पे एक निकालना है, एक का इस फ्लोर पे बी निकालना है, अब बाकी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। एंड देन यू कम टू द फर्स्ट फ्लोर। ऑन द फर्स्ट फ्लोर अगेन यू कैन से 1 2 3 4 5 6 the 6 or 7 will have the more values in comparison of the other rooms। यस सर। This restaurant, as it having the more length and the more tonnage, so you can say this is the C। तो Yeah. first floor पे आप C का निकाल लीजिए। Okay, and similarly on when you come to the ground floor पर थोड़ा सा confusing हो सकता है, but the length of 15 TR is maximum। Okay, number one thing। And the length of the 5 TR and the 10 TR is almost similar। लेकिन 5 और 10 को कंपेयर करेंगे तो you will find that the 10 TR का internal losses will be more than the 5। And again the 5 TR will have the internal losses more than the 10 TR। Okay, so by your IQ you can decide on this floor definitely the 15 TR will have the more Yes. losses, that is the T, just because its length भी ज्यादा है इसका और इसका internal losses भी ज्यादा है, तो इसका total losses भी ज्यादा। So that means out of the 4 floor around 50-60 जितना भी आपका parallel loops है, now you have converted that only the 4 loops will be the deciding। या आप 4 लूप्स का निकाल लीजिए, उसमें विच वन इज द बिगर, दैट विल बी द डिसाइडिंग। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इफ यू वांट टू चेक, आप बीच में कोई और भी एक निकाल के देख लीजिए, आपको पता चले। सेकंड थिंग, अब हम लोग इसको, मैं आपको जो कैलकुलेट करके दे रहा हूं, जो टॉप फ्लोर का बार है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में है और मैं 8TR का है, मैं उसका कैलकुलेट अभी क्लास में करूंगा। और बाकी का कैलकुलेशन जो है, जो मैंने आपको डिसाइडिंग पॉइंट ABCD जो आपको बता दिया है, कि 3 का आप घर पे करेंगे। यस सर। ओके, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा अभी।
और उसमें से आप डिसाइडिंग करेंगे कि कौन सा ज्यादा होता है। तो हम लोग अभी क्लास में कैलकुलेट, वो ज्यादा है तो वो डिसाइडिंग हो जाएगा, या आपका कोई निकलता है तो वो डिसाइड। द इंटरनल लॉसेस of the fan coil units or the AHU that will be given by the manufacturer, क्योंकि उनका AHU का डिजाइनिंग कैसा है, ट्यूब्स का नंबर ऑफ रोज उसमें कितना है, उसमें से पाइप और नंबर ऑफ पैरेलल लूप्स उसके कितने हैं, जो मैंने आपको सर्किटिंग बताया उसका सर्किटिंग कितना है, सर्किटिंग में जो पैरेलल लूप्स बनते हैं उनका सेम आता है। तो द manufacturer will decide you that how much loss is there. I am giving you the thumb rule, which is very close value the manufacturer experimentally they measure it. Okay, what that the thumb rule is there, आप उसको नोट कर लीजिए। In case of the AHU, we generally take 12 to 14 feet of equivalent length. No pressure drop. It's the feet of equivalent. Head. Equivalent length per ER. यानी कि AHU है अगर आपका, तो उसका पर TR के बेसिस पर आप उसमें 12 टू जितने भी आपने स्ट्रेट लेंथ पाइपलाइन की, जैसे हमने डक्टिंग में कैलकुलेट किया था, स्ट्रेट पाइपलाइन में 12 टू 14 फीट इक्विवेलेंट लेंथ पर टीआर के बेसिस पे आप ऐड कर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 15 टन के लिए जो स्ट्रेट पाइपलाइन अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो मान लीजिए आपका आता है 150 फीट। ओके, अब ये 15 फीट है तो इसमें इक्विवेलेंट लेंथ ऐड कर देंगे। मान लीजिए 12 टू 14 है, आप 12 ले लीजिए मान लीजिए, तो 12 into मल्टी 15 टीआर है, तो 15 टीआर ये टोटल लेंथ हो जाए। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स? यस सर। ओके, एक तो ये याद रखिएगा 12 टू 14 फीट ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ पर टीआर। And when you are saying to the fan coil unit, fan coil units, इस पे आप लेके चलते हैं 2 to 3 feet of equivalent length per TR. सर इतना फर्क क्यों? इतना फर्क इसलिए आता है उसके अंदर कि AHU के अंदर जो है ना बैंड्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो बैंड वगैरह हैं वो बैंड पर बहुत 180 डिग्री के जो बैंड टर्न होते हैं ना, उसमें अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि 8 TR का आपका कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है। तो उसमें स्ट्रेट लाइन, तो अगर स्ट्रेट लाइन बेस पे देखते हैं तो सिमिलर लॉस होगा। बैंड्स इतने सारे होते हैं उसके अंदर दोनों साइड में, ये जस्ट टू मेक ए सर्किट इनटू दैट। ओके, और आपका फैन कॉइल तो 1 TR का है, तो इसमें ये ज्यादा बड़े साइज में नहीं अवेलेबल होते हैं, तो इसमें लॉसेस बैंड कम होने की वजह से 180 डिग्री इसका टर्न होता है बैंड में, 90 नहीं होता, 180 का टर्न। ओके, तो वहां पर मोमेंटम बहुत हैवी लॉस आता है, तो उसके अंदर इतने बैंड हो गया तो वो आपका लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ता ओके, है। ओके, ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। एंड द सेकंड थिंग इज, ये देखिए, सपोज आई एम कैलकुलेटिंग फॉर द लास्ट वन and on the, let's say this is the top floor is there and the connections are here. मैं उसी में दिखाता हूँ आपको। Yeah, here. And suppose I'm calculating for this C value, and here definitely you are providing the bands
आई मीन के टी लगाते हैं, टी का मतलब होता है कि वन डायरेक्शन में इधर फ्लो होगा और एक डायरेक्शन में इधर फ्लो होगा। ओके, मुझे ये बताइए, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग अबाउट द सी, इस पर इतने ज्यादा टी लगे हुए हैं, इस पॉइंट पर टी, इस पॉइंट पर टी, डू यू हैव टू टेक दिस टी व्हेन यू आर कंसीडरिंग दिस लूप, सी लूप? यस सर। जितने इस पॉइंट पर एक टी आ गया, एक यहाँ टी आ गया, इस टी का लॉस आपको सी वाले लूप में कैलकुलेट करना है। हाँ सर, करना पड़ेगा। ओके, अदर गाइस, व्हाट इज योर ओपिनियन? Yes, sir. We have to consider that. All are in this favor कि we have to consider? No. Why no? If no, why no? Who said no? हाँ जी, Who said no? कोई बोला है अभी? नो भी आया ना किसी का रिप्लाई? नहीं सर, वो मेरा मतलब मैं किसी और को बोल रहा था, माइक ऑन है। देखिए, मैंने डक्टिंग में भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक से समझाया था आपको। सपोज द टू बाइकर्स आर मूविंग and then there is a turn. Okay, one is going and taking turn, another biker is going straight. Who will have to reduce his speed? The person who is taking turn. Person who is taking turn. So that means इसमें लॉस आएगा उसका, क्योंकि he will put the brakes, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा उसका, और यू कैन से मोमेंटम लॉस हो जाएगा। बट द पर्सन हु इज गोइंग स्ट्रेट, ही इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस हिज वेलोसिटी। अब मुझे यहाँ पर मैं आपको इसमें डायग्राम में बताता हूँ कि ये वाटर आ रहा है पाइपलाइन में, सम वाटर इज गोइंग टू दिस साइड एंड द सम वाटर इज गोइंग टू दिस साइड, एंड देन द वाटर इज गोइंग टू दिस, और यहां जाकर के आपका पाइप साइज रिड्यूस हो गया। देखिए, सम वाटर इज गोइंग टू दिस साइड एंड सम वाटर इज गोइंग, एंड as the water in the second portion is reduced, so correspondingly diameter has come down. अब यहां पर जरा देखिए कि the water which is going straight, the water associated with the loop C which is going straight is subjected to any momentum change? नो। तो फिर आप इस P का लॉस, इस साइड में जा रहा है वाटर, इस साइड में जा रहा है, तो P के लॉस को क्यों कंसीडर करेंगे? अगर आपने इस लूप का लॉस कैलकुलेट करना है तो ये जो T फॉर्म हुआ, ये जो बैंड आया, तब हमने उस लूप में उस बैंड का लॉस को कंसीडर करना है। सर, बिकॉज वी आर यूजिंग द इक्वल फ्रीक्वेंट फ्रिक्शन मेथड। हाँ, तो इक्वल फ्रीक्वेंट मेथड में हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर सेक्शन के अंदर हमारा फ्रिक्शन सेम है, वी आर मेंटेनिंग एट द सेम प्रेशर। तो इसकी वजह से जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग द इक्वल फ्रिक्शन। हमने जब साइज कैलकुलेट किया तो सबकी जगह इक्वल फ्रिक्शन है, तो इक्वल फ्रिक्शन से सर मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। इस लूप के अंदर आज मैंने पहले भी आपको बताया था, डक्टिंग वाले उसमें भी, इक्वल फ्रिक्शन मेथड्स प्रिंसिपल इज रॉन्ग। ओके, क्योंकि हर लूप के अंदर जितने भी लूप फॉर्म होंगे, वो ऑल लूप शुड हैव द सेम लॉस ओके, प्रिंसिपली। बट हाँ, टिपिकली जिसका लेंथ ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था कि लॉस आपका मान लीजिए 5 पास्कल पर मीटर या होता है। एक लूप का लेंथ है आपका 10 मीटर्स और दूसरे लूप का लेंथ है 10 मीटर, 20 मीटर। तो इस लूप में कितना लॉस होएगा? 5 into 10
Yeah. 50 पास्कल्स का, और इस लूप में कितना लॉस होगा? 100 पास्कल्स। Okay. तो सेम तो हुआ नहीं। अभी हाँ. इसको डिजाइन किया मैंने 2.4 जीपीएम के, ओके। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि पहले तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि देखिए, वाटर विच इज एसोसिएटेड योर लूप टू विच यू आर कंसिडरिंग इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्शन चेंज और नॉट। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो आप उसको लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे उस लूप के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ बैंड आ रहा है, इस बैंड का इस लूप में तो कंसीडर होगा, लेकिन आपके सी वाले में कंसीडर नहीं होगा। इसका साइज रिड्यूस हुआ पाइप का, तो साइज रिडक्शन को हम टेक केयर करेंगे। आगे समझ में नहीं आया? रिपीट कर दो सर। हाँ जी, लास्ट थिंग रिपीट कर दो सर। देखिए अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? दिस लूप ऑफ द रूम नंबर 1 इज क्लोजर टू द पंप इन कंपैरिजन ऑफ द रूम नंबर 6। तो इस 1 नंबर के में तो ज्यादा फ्लो रेट चला जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ कम हुआ ना इस लूप का। मान लीजिए पंप यही लगा हुआ है, तो दिस लूप of the room number 1 is closer, so its loss will be the only 50 पास्कल, और इस 6 रूम का 20 मीटर का लेंथ है, तो इसका लॉस हो गया 100 पास्कल। तो व्हाट विल डू? आपकी वॉल वगैरह की क्लास हुआ ना? वॉल पढ़ाया था आपको? पाइप आपका वाटर स्ट्रेट जा रहा है तो उसको लॉस को कंसीडर नहीं, ये सिंपल रूल आपने याद रखा। ओके, इट इज क्लियर। हाउ मच इज द टोटल लेंथ एसोसिएटिव? मैं आपको टॉप लॉस जो बार वाला था, मैं उसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बाकी की कैलकुलेशन आप उसी फंडामेंटल्स पे आप खुद से करेंगे। ओके, सबसे पहले बताइए, टॉप फ्लोर में लास्ट तक जाना है आपने, तो हाउ विल गो देन? बताइए। पंप से 20 feet you are going, okay, then you just I am saying the supply length, I am considering the bar, third floor, I am assuming this is the longest loop, okay, इसका मैं निकाल के दिखा रहा हूं। So that means that 20 feet and the 12 feet is here, 12 feet is here, मतलब कितने 12 आया? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आपको 12 फीट हाइट राइज करना पड़ेगा, ओके, एंड देन यू गो टू द थर्ड फ्लोर। ये कितना हो गया? पहले इसी को लिख लेते हैं। ये कितना हुआ आपका? 80 फीट ये हो गया हमारे पास। अब आप थर्ड फ्लोर पे आ जाइए। एट्टी फीट प्लस थर्ड फ्लोर, टॉप फ्लोर पे इस पॉइंट तक 80 फीट आया था हमारा पंप से लेकर के, एंड देन यू गो हॉरिजेंटली टू द, यहाँ लास्ट में आ जाइए। तो कितना फिट है ये आपका? 120 फीट, ओके। और फिर हमने लिया, आपको इस साइड में जाते हैं हम लोग, कितना लेंथ लिया था हमने? ये 20 फीट लिया था लास्ट में, लेके चले थे ना हम लोग इसमें। हाँ सर, 20 लिया था प्लस 20 ये लेंथ। तो अगर आपका ड्राइंग में, अगर लेआउट में रिटर्न का थोड़ा डिफरेंट आ रहा है तो वो ले लीजिएगा, अदरवाइज जो है मेरी ड्राइंग के हिसाब से पैरेलल चल रहा है सब जगह, रिटर्न और पैरेलल सप्लाई, तो आई एम टेकिंग द 220 सेम ले रहा हूँ मैं फिट आप इसमें। तो आपका 1112 मल्टीप्लाइड बाय
8 कितना हुआ 112 112 feet equivalent length. ओके तो Okay. कितना हुआ हमारे पास में 552. length will be 440 plus 112. So it will be equal to 552. 550. ये हो गया हमारे पास में. Now next is the इसमें अब फिटिंग लॉसेस पे आ जाएगी. ये तो स्ट्रेट पाइप. अब फिटिंग लॉसेस that when pipe starts the pump and going to the ATR AHU, it having the number of bands, it having the gate walls. हर एक सिस्टम में हम लोग लगाते हैं. What is the function of the gate wall? Isolate the system. Isolate the system. And the glow wall control the flow rate. Control the flow. And what is the function of automatic expansion valve? Sorry, automatic valves here. चलिए वो देखना उसका फंक्शन भी क्या होता है. And this ATR, whenever it is required some maintenance, so definitely it will requires the gate valves that you have to close it once. Plus inlet पर भी लगाते हैं हम, outlet पर भी लगाते हैं. ओके अब ATR को जो हमने पाइपलाइन का कनेक्शन दिया था वो कितने इंचेस का था? 1 second. 1.5 inch. Gate wall to ATR. The size is 1.5 inch. inch. अब आप 1.5 इंचेस पर गेट वॉल में जाइए. मैंने आपको चार्ट दिया था. हाँ सर 0.9 दिखा रहा है. Yeah. This is the gate wall. 1.5. कितना लॉस शो रहा है इसमें? 0.9. 0.9. ये लॉस नहीं है. इट इज ए इक्विवेलेंट लेंथ. अच्छा ओके. इज ए इक्विवेलेंट लेंथ. तो आपको 0.9 सप्लाई पे आएगा एक गेट वॉल और एक गेट वॉल आपका रिटर्न पर. ओके ओके. 0.9 feet plus 0.9 feet. 1.8 feet आपका ये आ गया. Okay. और कोई गेट वॉल इस लूप के अंदर? ये लूप को आप माइंड में रखिए. पंप से स्टार्ट होता है और इस बार तक जाता है. और इस लूप में और कहाँ लगा होगा? गेट वॉल किसी इक्विपमेंट के साथ ही होता है. तो फ्लोर वाइज में होता है क्या? फ्लोर वाइज गेट वॉल फ्लोर वाइज पर भी होगा. उसकी तो साइज यहाँ जो पूरे फ्लोर का अभी इनपुट आ आपको रहा मान है, लीजिए किसी फ्लोर को बंद करना है तो आप वहां भी लगा सकते हैं. और पूरे फ्लोर का जो इनपुट आ रहा है वहाँ, और वहां पे भी एक होगा. हाँ लेकिन सर वो तो फ्लोर पे जो लगाएंगे आप
वो तो इस तरीके से होगा ना, ये फ्लोर पे लगाया, इस फ्लोर पे जो वाटर जा रहा है, आपका वाटर तो स्ट्रेट जा रहा है, आपने तो वो लेने के बाद लगाएंगे ना उस पे। सप्लाई जो है मेन पाइप से, इस मेन हेडर से सप्लाई लेने के बाद लगाएंगे आप गेट वाल। हाँ आपका वाटर तो सीधा निकल गया, उसमें तो गेट वाल आया ही नहीं रास्ते में। ओके ओके, ऐसे इस पर भी एक गेट वाल लगा देंगे, यहाँ भी एक गेट वाल लगा देंगे। ये फिटिंग्स ना आपको ड्राइंग से देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपली जो मेन आ रही है कंसीडर होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई फिटिंग आती है तो उस पर उसको आपने डाल आएंगे। अभी तो रिटर्न में पाइप साइज इंक्रीज हो रहा है एक्सचेंजर के अंदर। बताइए इंटरनल लॉस। यस सर। तो ये जो इंटरनल लॉस होगा उसको भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो ये जनरल थंब रूल है 12 to 14 फीट पर टीआर। जितने टीआर का आपका EHU है तो पर टीआर के 12 to 14 फीट का इक्विवेलेंट लेंथ और ऐड कर देंगे, मतलब इतना लॉस ये क्रिएट करेगा। तो 12 to हमने 14 फीट पर टीआर ले लिया, तो हमारा 8 टीआर का था, तो कितना इक्विवेलेंट लेंथ और ऐड करना पड़ेगा इसमें, 14 मल्टीप्लाई बाय दिस 8 जो हमने ये वाला। अब देखिए गेट वाल फ्लोर वाइज जो है वो आपका कितने इंची लिया था, 2 इंचेस, हमने किया अभी 1.2 फीट। सप्लाई और रिटर्न डबल लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द 2.4 फीट। टू 2.4 फीट का ये लेंथ हो गया। अब आप ये सारी चीजें आज पूरा नहीं हो पाएगा,